Hi Kapil, welcome on your PDR. Sir, how are you? Wonderful Kapil, and I've interacted with you many times in person also Kapil, and online also. And today this interaction is very special because you have completed one another milestone. So Kapil, I met you when you were graduating. I think you were in second or third year of your BTech, and then you joined a very prestigious institute, IIT Ropar, for PhD program. And then after completion of PhD, you went for postdoctorate fellowship to Cranfield University, that is in UK. And then you did postdoctorate fellowship, and then now you are into a job in the industrial job. It's a good one job. So why I'm saying it's a milestone, because Kapil, many students are not aware that postdoctorate fellowship gives you opportunity to serve in very good industries. So that is where this interaction is going to be very very useful. This is brief, very brief for my viewers from my side. But I would like that you tell your journey, Kapil, apni journey. And I'll tell, you can tell from which part of India you are, कहाँ से हैं आप, और फिर आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक की, आपके पर्सपेक्टिव में मेरे को बताइए आप. Sure, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity once again. तो मेरी जर्नी एक एज ए नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही है. जैसे मैं बैचलर्स बीटेक करने चितकारा यूनिवर्सिटी में गया बिकॉज आई कुडंट गेट इनटू आईआईटी और एनी अदर good engineering college, but I had that always as like something ambition to do something good or be at the very renowned institute in India. So that's why I met you around 2011-12. And then I got to know, okay, there is one exam which is called GATE, and which provides you an opportunity. So I think you have done a great job on that side, telling students. So my journey started from there. I prepared for that exam, and managed to get a decent score where I could get interview calls from IIT Kanpur or Ropar or so I chose IIT Ropar actually after graduating, and in between I went to do my MTech at Punjab Indian College. But obviously that was just a part of the journey. So then I joined IIT Ropar and I got into mechanical engineering department. So I did my PhD there for 5 to 6 years, and then I worked on thermal desalination. Obviously, a very interesting topic. So that was overall about my research journey. And then always, when students in India, PhD students in India, they graduate from their universities or institute, they want to do foreign postdoc actually. Either they could get some through fellowship. They do it in India as well, but most of the students they want to go abroad. So I chose basically, and I chose to go abroad. I got a very good position, at Cranfield University again on desalination. So I spent around 2.5 years at Cranfield University, and then I went to University of Manchester to work on a very interesting project on compressed air. But somehow I couldn't continue and came back to Cranfield again for another 1 year. I worked on water purification. So I worked on I worked on different range of projects. I didn't stick to the one particular domain. I worked on water purification. I worked on energy storage. I worked on crystallization, which is relevant to pharmaceutical industry. I worked on biogas operating, which is relevant to the uh, purifying the biogas produced in the water treatment plant, and then further that gas is basically sent to the grids actually for power production. And then I went to basically a different type of job which is very interesting, which is like a partnership between industry and academia. So I was working with industry. That's called knowledge transfer partnership. So I was employed by University of Lincoln, but I was working for industry, which is like heat exchanger manufacturing industry. So the work that I did during my PhD on heat exchangers for desalination, I told about my knowledge, and then I got this job actually, and I'm working for a heat exchanger company. I was basically developing a model for industrial heat exchangers actually. And then finally, when I decided that okay, I can go into industry, I got this job where I'm now actually, which is a series, which is company called Series in the UK, and it's again out of where I never worked on this topic, but it's called fuel cell and electrolyzer. So we are producing hydrogen or electricity from the same technology. So that's about my journey actually, which I'm recently started. Yeah. Wonderful. So, Kapil, I have a question to ask you, which normally students ask when they complete their PhD and want to go for postdoctoral fellowship. The question here is like postdoctorate fellowship के बाद, PDF के बाद,
उन कंट्रीज में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलता है? सो व्हाट आर द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज वी गेट आफ्टर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप? इज इट लाइक हम पीडीएफ करते रहेंगे, और इज इट लाइक वी विल गेट द जॉब ऑफ टीचिंग बैक होम, और क्या होता है पीडीएफ के बाद? तो डेफिनेटली जैसे पीडीएफ के बाद सर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास. यू गेट मेनी ऑप्शंस. ओके, so you can be an entrepreneur because during the PDF, if you have a very good idea, you can write for fundings. You can basically collaborate with other people and try to manage to get some funding, and then you can be an entrepreneur. And obviously, I would say the very first thing about these jobs transitioning from industry from PDF to other jobs depends on visa. But let's keep the visa thing aside for a moment. We have very different options. Like you can go into academia. So as we do, we get a chance to go into academia in India. हमारे पास यहाँ भी चांस होता है एकेडमी में जाने का, बट एकेडमी इज अगेन कॉम्पिटेटिव. यू हैव टू हैव अ फंडिंग. सो लाइक यूके में क्या होता है, आपके पास आपको फंडिंग होनी चाहिए, या आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. सो यू कैन कीप अप्लाइंग फॉर लेक्चरशिप पोजीशन. यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर टीचिंग पोजीशन एज वेल. रिसर्च से हटके होती है, बट उसमें आप टीचिंग करते हो. तो मैं यूके की बात कर रहा हूँ, और ये सेम प्रोसीजर और कंट्रीज में भी होता है एक्चुअली. यूरोप में होता है, यूएस में होता है. तो एक अकेडमी तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है. यू कैन ऑल्सो गेट समटाइम्स परमानेंट रिसर्च पोजीशन, एक्चुअली परमानेंट रिसर्च फेलो. सो यू कैन बी रिसर्च फेलो लाइक पोस्ट डॉक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. सो जैसे किसी प्रोफेसर के पास बहुत लंबी टाइम की फंडिंग है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप परमानेंट रह जाओ, और जब आपको लगे कि आप नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो, तो आप लेक्चरर बन सकते हो. तो ये भी एक ऑप्शन होता है. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट अ इंडिपेंडेंट रिसर्च फेलोशिप पोजीशन विच इज ऑलवेज अ पाथवे फॉर यू टू बिकम अ लेक्चरर. तो आपको हमेशा एक आपको अलग से एक रास्ता मिलता है परस्यू करने का, आपका अपना इंडिपेंडेंट करियर. तो द वन इज कॉल्ड पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, विच इज कॉल्ड परमानेंट फेलोशिप. बट देर इज इंडिपेंडेंट फेलोशिप लाइक रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और मैरी क्यूरी, और उसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं. और आपका हो गया अकेडमिया, जिसमें आप लेक्चरर बन जाते हो स्ट्रेट अवे. फिर एक आपका आता है टीचिंग फेलो, जिसमें आप सिर्फ टीचिंग करते हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लंदन के पास कोई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वो रिसर्च इतनी नहीं करते हैं, बट टीचिंग करते हैं वो. ठीक है. उसके बाद फिर आपकी आती है इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास वीजा की कोई मतलब कोई बैकलॉग बोटलनेक नहीं है वीजा का कोई इशू नहीं है, तो आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो. अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में स्टार्टअप कंपनीज है ना, वो पीएचडी को वैल्यू देंगे. जैसे जहाँ पे मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, देर आर मैनी पीएचडी फ्रॉम इवन फ्रॉम कैम्ब्रिज, इवन फ्रॉम पोस्ट डॉक. पीएचडी नहीं, पोस्ट डॉक भी 4 4 5 5 साल लोग पोस्ट डॉक करके भी इंडस्ट्री उनको, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जितने लंबे टाइम पोस्ट डॉक करोगे, आपको आपकी वैल्यू गिरती जाएगी. ठीक है. तो ये एक चीज है, बट अभी ये लोगों को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपको एक कहीं से एक रास्ता मिल जाए इंटरेक्ट करने का, क्योंकि इंडस्ट्री में इंटरेक्ट करना एक बड़ा एक चैलेंजिंग है. आपको वहां पहुंचना होता है बेसिकली उन एम्प्लॉयज तक जो हायर कर रहे हैं. तो आप वहां तक पहुंच जाओ, तो उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. और इंडस्ट्री में डेफिनेटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. तो हम नॉर्मल रिसर्च, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे बहुत अगर फंडामेंटल रिसर्च रही है, जिसमें हम कोई स्किल नहीं सीखते, सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं सीखते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको टूल्स यूज करने पड़ते हैं. तो इफ यू आर हैंड्स ऑन, लाइक सम स्किल्स आते हैं आपको, मॉडलिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको एक्सपेरिमेंट आते हैं. जैसे मेरे को जो ये जॉब मिली है, ये मुझे हम्म, मिली एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि मैं टेस्ट इंजीनियर हूँ. तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं नट बोल्ट खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, चीजें हम्म, कर सकता हूँ नई, और हम्म, ट्राई कर सकता हूँ. हम्म, तो एक हम्म, ये भी पाथवे है. लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी स्टार्टअप, मैं बात कर रहा था कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो आपको वैल्यू कर रही हैं. बहुत सारी स्टार्टअप हम्म, में आपको देखेंगे हम्म, पीएचडी और पोस्टडॉक ही जो है वो उसको लीड कर रहे हैं. ओके, तो ये भी एक ऑप्शन है. और बाकी हम्म, एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि इन बिटवीन जब मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा था पोस्टडॉक के बाद, तो मैं यूसीएल में टेक्नीशियन की जॉब के लिए भी गया था. तो वहाँ पे एक हम्म, थर्मल टेक्नीशियन की जॉब थी, अच्छी खासी हम्म, सैलरी थी उसमें. हम्म, बट ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू बिकम अ टेक्नीशियन, तो वो भी एक ऑप्शन है. तो हम्म, फॉरेन में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. यहाँ पे हम्म, स्किल्स की ज्यादा डिमांड होती है एक्चुअली. ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके पास पोस्ट जो है हम्म, तो आप टेक्नीशियन ही बनोगे. बहुत सारे लोग जो हम्म, है पीएचडी करके भी आप okay, देखेंगे यूसीएल में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, आपको ऐसे टेक्नीशियन मिलेंगे थर्मल की लैब में या कोई भी लैब में, जहाँ पे वो पीएचडी करके बैठे होंगे. तो इसका मतलब हम्म, उनके पास एक स्किल है जिसको यूज कर रहे हैं. ओके, तो दैट्स ओके कपिल. सो इंडिया के बहुत कैपेबल लड़के जो पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी इंडिया से कर रहे हैं, तो और आईआईटी से जो पीएचडी करता है वो एक लेवल तक पहुंचता है, अच्छा काम करता है, तो उसका मतलब है कि उसको पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पक्का मिलेगी.
तो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप लेने के बाद ये वाला जो पार्ट है कि साहब हमें कुछ देखो स्ट्रगल तो करना पड़ता है, वो पीएचडी के बाद भी करना पड़ता है, पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी करना पड़ता है, लेकिन ये चीज के पता नहीं मेरा क्या बनेगा, वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में सेफ और सिक्योर जॉब का कंसेप्ट कुछ अलग है, और ज्यादातर हम उसको गवर्नमेंट जॉब से जोड़ लेते हैं। लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है, हम्म। अब्रॉड में ऑब्वियसली है, जैसे आपने बताया स्किल के साथ रिलेटेड है, जैसे आप स्किल अपडेट अपने आप स्किल करते जाओगे अपने आप को, वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास हम्म। मिलती जाएंगी। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप ऐसे सारे कैंडिडेट्स को जो इंडिया से पीएचडी कर रहे हैं या एडवांस स्टेज में है और अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड ओवर देखना चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा कि ये डर तो हमेशा रहेगा, ये डर तो मेरे साथ अभी भी रहता है कि क्या होगा, बिकॉज हम्म। जैसे मैं अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं हम्म। सुनता हूँ कि वहां से को ले ऑफ कर दिया, क्योंकि हम्म। आज का जो बिजनेस है वो डायनेमिक है बहुत ज्यादा। वो हम्म। जैसे अब हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ देखते रहते हैं हमेशा, तो जब एआई आ हम्म। गया तो हम्म। एवरीथिंग इज डाउन टू बिजनेस, कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है कंपनी का, तो हम्म। और जो हम्म। भी है आपको तभी तक हम्म। रखेंगे जब आपकी वैल्यू है, जब आपकी कोई हम्म। डिमांड है। तो हम्म। अगर मतलब ये चीज हमेशा चलती रहेगी, इससे हम्म। इससे इससे डरना नहीं डरने की चाहिए, जरूरत ठीक नहीं है, है। आप अपना बस आगे रास्ता, क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता था कि मेरे को, तो मैं आपको एक बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं हमेशा ही सोचता था कि इंडस्ट्री वाले क्यों लेंगे मुझे, हम्म। मतलब मेरे सीवी में ऐसी क्या चीज है जिससे मुझे इंडस्ट्री हम्म। वाले लेंगे। और ये हाँ। बहुत अचानक मतलब ऐसे हुआ, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया और मुझे पता लगा कि जितना काम मैंने पीएचडी में किया है, जो कि हम, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। हम हम्म। पीएचडी में जब हम सेटअप बनाते हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। उस सेटअप की हम कोई वैल्यू नहीं करते। तो हम्म। आपका आपका प्रोफेसर आपको बोलेगा कि ये तो सेटअप है, इसमें क्या है, ये तुमने थोड़ा हम्म। बनाया है, ठीक है, ये हम्म। तो हमने बाहर से हम्म। बनवा लिया या खुद अपने हम्म। टेक्नीशियन से बनवा लिया या फिर आपने हम्म। वर्कशॉप में बनवा लिया, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। लेकिन हम्म। इंडस्ट्री ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा तो वो यही पूछा कि आपने इसका लीक चेक कैसे किया, आपने थर्मोकपल हम्म। कहाँ लगाया, ये थर्मोकपल जो हम्म। था ये फॉल्ट रीडिंग देख तो कैसे पता करोगे आप। हम्म। तो मैं ये बोलना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को, आप जो भी कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू कीजिए और वो देखिए कि वो स्किल कहाँ पे हो सकती है। हम्म। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो भी करते हैं उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है। और पीएचडी हम्म। में जब हम 5-6 साल, हम इतना लंबा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं, हम सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं। आपको मैं बताऊंगा, डेफिनेटली एक चीज है जो मैं इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको अगर किसी लेमैन को बताना हो, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको। तो तो मुझे बाद में याद आया कि मैं अपने फादर से ना हमेशा अपनी डिस्कस करता था कि मैं पीएचडी में अब ये काम कर रहा हूँ, अब ये मेरे हम्म। को ये सेटअप हम्म। बना रहा हूँ। इवन मेरे घर के छोटे बच्चे को पता होता था कि अब मेरा सेटअप आने वाला है, तो उसको बोलते थे कि मशीन आने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम कॉन्फ्रेंस हम्म। में जाते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक स्किल है कि आप अपनी चीजों को किसी को समझा सकते हो। कैसे बता रहे तो हैं? वो भी इंडस्ट्री में काम आती है कि वहां पे आपको हर तरह के लोगों से काम करना पड़ता है, वहां पे सारे हम्म। पीएचडी नहीं होंगे। तो आपको किसी हम्म। जनरल टेक्नीशियन से बात करना है, आप बोलोगे कि मेरे को ये हम्म। स्क्रू यहाँ पे वेल्डिंग हम्म। करनी है, यहाँ पे होल करना है, तो हम्म। मतलब उसको आपको समझाना पड़ेगा जनरल लैंग्वेज में। तो ये भी आपके पास हम्म। स्किल होनी चाहिए, या फिर हम्म। अगर आपके पास है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ओके। स्किल इज ऑलवेज वैल्यूएबल। ओके। ओके कपिल, बहुत अच्छा लगा, बहुत इनपुट्स आपकी तरफ से मिली। अब देखो मैं इस सेशन को तो बहुत बहुत लंबा नहीं करूंगा, ये सेशन था रिलेटेड टू योर गेटिंग इनटू अनदर माइलस्टोन, दैट इज अ जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स के दिमाग में होता है कि साहब पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए जा रहे हैं तो हम प्रोफेसर के साथ ही रहेंगे, उसी की लैब में रहेंगे, वहीं अपना जो है टाइम पास करेंगे, ऐसा लेकिन इंडस्ट्री में भी जॉब्स लगती हैं और बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं, ये मैं उनको बताना चाहता था थ्रू योर जॉब, एंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप उस चीज का। अब अगली जो सेशन मैं आपके साथ कुछ करना चाहूंगा वो आपके रिसर्च के ऊपर, डीसैलिनेशन के ऊपर, मेरे को पता है आपने बहुत अच्छा काम किया है, डीसैलिनेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप उन कंपनीज के साथ भी काम कर चुके हैं या कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स है इस फील्ड में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। और अगर किसी कंट्री को आज की डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है डीसैलिनेशन की तो इंडिया है। और हम ये भी जानते हैं, और ये तो जी, इन्फॉर्मेशन मेरे को आप ही के थ्रू मिला है, हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में ह्यूज स्कोप है इस चीज का, लेकिन अभी भी उतना काम इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो कपिल मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। आपसे कि मेरे को कुछ टाइम आप दें जिनमें हम अगले कुछ इसके सेशन बनाएं, और वो उसका सेशन का पर्पज होगा ऐसे सारे एंटरप्रेन्योर्स को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या जो इस फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहते हैं उनको आइडिया मिले, और कोलेबोरेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। मे बी दे कैन कोलेबोरेट विद यू एंड दे कैन गेट इनपुट फ्रॉम यू और गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, बिल्कुल सर। और इंडिया के अंदर वो इकोसिस्टम हम तैयार कर सकें। तो आई थिंक विल मेक ठीक है सर। नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज ऑन दैट। श्योर सर, श्योर, इट वुड बी अ प्लेजर ओके। एक्चुअली। ओके कपिल, ओके आई सर, कैच यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।